हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। इस सेशन में आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट का, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए अपना जर्नी शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने स्क्रीन पे। इन द गिवन पिक्चर ऑफ सोरिन्स ऑटोपेन विजन, द सन्स angel and Christ symbolize A. Equality among people, B. Fraternity among nations, C. Freedom of nations, D. Resentment against nation. So B is the correct answer. Next question. Certain events are given below. Choose the appropriate chronological order. Coming of Simon Commission to India, demand of Purana Swaraj in Lahore session of INC, third Government of India Act 1919, फोर्थ चंपारण सत्याग्रह। इसको अरेंज करना है और ये ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ही चलना है और अपना जो पढ़े हैं उसको देखना है। ऑप्शन है ए में पहले 3 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और 1। बी में पहले 1 होगा, पहले उसके बाद 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। सी में पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा। डी में 4 3 1 2 होगा। तो कौन सा आंसर सही है? हम चलते हैं डी से, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द 19th century? ए, the rise of European colonial empires and advancement in transportation. B, the abolition of slavery, which reduced the need of international trade. C, decline in demand for raw materials like cotton and sugar. D, the establishment of the World Trade Organization regulation global trade. तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? हम तो जाएंगे ए के साथ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन्स गुटेनबर्ग रिवॉल्यूनाइज्ड द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूरोप। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इफेक्ट्स ऑफ इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस? 1, rapid spread of new ideas and knowledge. 2, growth of literacy and education. 3, decline in religious authority. And 4, strengthening of monarchies. मोनार्कीज भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसमें भी ऑप्शन है। चूज करना है। ए में 1 and 2, बी 1 2 3, सी 2 and 4 एंड डी 1 and 4। तो हम लोग चलते हैं बी के साथ। 1 2 3। अफेक्ट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। पहला, रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। 2, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। और 3, डिक्लाइन इन रिलीजियस ऑथोरिटी। यही 3 ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which resource is renewable and can be replenished over a relatively short period of time through natural process? Fossil fuel like coal and petroleum, which take millions of years to form. B, solar energy from the sun, which is available in abundance and continuously replenished. C, mineral resources such as iron ore, which are found over geological time scales. D, non-renewable sources like natural gas, which cannot be regenerated once consumed. तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएंगे हम लोग?
हम तो बी के साथ जाएंगे। बी, solar energy from the sun which is available in abundance and continuously replenished resource। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Western Ghats are recognized as one of the world's biodiversity hotspots। Analyze the following statement about the Western Ghats। पहला है they are home to a vast number of endemic plant and animal species। सेकेंड है द वेस्टर्न घाट्स स्ट्रेच अक्रॉस 8 इंडियन स्टेट्स फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु। 3 डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट destruction are major threats of their biodiversity। 4th, the Western Ghats are primarily desert regions with sparse vegetation। Choose correct option। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 to 3 only, 1 3 4 only। कौन सा आंसर सही है चूज कीजिए। थ्रोली पढ़ने से ही इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा गलत हो सकता है। हम लोग सी के साथ चलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। वेस्टर्न घाट का स्टेटमेंट, दे आर होम टू अ वास्ट नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पाइसेस। Second, the Western Ghat stretch across 8 Indian states from Gujarat to Tamil Nadu। 1, 2 and 3, deforestation and habitat destruction are major threats for their biodiversity। Next question पे चलते हैं। Match column A and B and choose the correct option। ये ऑप्शन आपके साथ है, कौन सा सही है? हम लोग सी के साथ चलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ए का 2, महानदी हीराकुंड, नर्मदा सरदार सरोवर, चंबल राणा प्रताप सागर, चिनाब सलाल। 3, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? ए, concentrating all governmental power in the central authority for efficient decision making। B, distributing governmental powers among various levels and branches to prevent misuse। C, allocating powers solely to the legislative branch to ensure balanced governance। D, granting all powers to executive branch to maintain order and stability। किस पे जाएंगे हम लोग? बी के साथ चलते हैं। बी, बेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंटल पावर अमॉन्ग वेरियस लेवल एंड ब्रांचेस टू प्रिवेंट मिसयूज। यही इसका सही डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, India has adopted a federal system of government to accommodate diversity। Which of the following statements about Indian federalism are correct? A, India is a union of states। Second, states have autonomy in all matters। 3, power sharing between the union and state government is a basic feature of the Indian constitution। 4th, the power sharing arrangement can be easily changed by the union government। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 and 3, 2 and 4, 1 and 2 and 1 and 4। हम समझते हैं 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। यस, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड 3, पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ caste discrimination and why is it considered a major social issue in India? A,
threatening individuals based on their caste, leading to social inequality and exclusion. B. Promoting caste-based system to maintain social order and hierarchy. C. Encouraging the mixing of different castes to create a unified society. And D. Ignoring caste differences to ensure everyone treated equally. किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाना चाहिए, बी के साथ? बताइए बताइए बताइए। ए के साथ ही चलते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। यही बहुत सा मेजर सोशल इशू है इंडिया में, थ्रेटिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट, लीडिंग टू सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं फिर बता दूं, इस सेशन में 20 MCQ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइडिंग वोटर्स विथ अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आर करेक्ट? पहला, ए टू पार्टी सिस्टम लिमिट्स वोटर चॉइस। बी, अ मल्टी पार्टी सिस्टम encourages coalition government. 3. A one-party system is more democratic than a multi-party system. 4th, a multi-party system provides more representation to diverse group. 3 तो होना ही होना है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 2 and 4, 1 and 3, 1 and 2 and 3 and 4। टू एंड फोर, टू एंड फोर। A multi-party system encourages coalition government. A multi-party system provides more representation to diverse group. ये सही है, यही सही है। ए 2 and 4। Consider the following statements. Statement 1. Democracy in India ensures the protection of individual rights and freedoms. Statement 2. In a democracy, the government is not accountable to the people. Which of the statements given above is or are correct? A. Only 1 is correct, only 2 is correct, both 1 and 2 are correct, none of these. डी में नॉन ऑफ दिस लिख दीजिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसके साथ हम लोग जाएंगे ए 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज नॉट। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है ना। Neither 1 nor 2 is correct. A is correct, right? Democracy in India ensures the protection of individual rights and freedoms, right? Next. 13. The power sharing model of Dash is considered one of the most complex, involving equal representation of the both Dutch and French speaking communities. India, Belgium, श्रीलंका, फ्रांस। हम समझते हैं द पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ बेल्जियम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। बेल्जियम इज द करेक्ट ऑप्शन। विच सेक्टर ऑफ द इंडिया इकोनॉमी इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल सच एज माइनिंग एंड एग्रीकल्चर? A. Primary sector, which includes activities like agriculture, mining and fishing. B. Secondary sector, which involves manufacturing and industrial production. C. Tertiary sector, which focus on services and distribution. D. Quaternary sector, which deals with information and research services.
चलिए ए के साथ ही चलना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। ठीक है, दिस सेक्टर ऑफ द इंडिया economy is primarily involved in the extraction and processing of raw materials such as mining and agriculture. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of globalization has been facilitated by the advance in technology, especially in the field of communication and A. manufacturing, B. mining, C. transportation, D. healthcare। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन को लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज द करेक्ट। मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ इनकम, यूनिट ऑफ अकाउंट। देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन भी तो देगा ना इसमें, ऑप्शन देख के और करेक्ट मारना है। ठीक है, वन टू फोर, 2 and 3, C 1 and 4, D 1 3 4। कौन सही है? ए के साथ जाएंगे हम लोग। ए इज द करेक्ट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और फोर्थ यूनिट ऑफ अकाउंट, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट ओनली इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक ग्रोथ। Second, development includes improvement in the standards of living, education and health care। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। Only 1 is correct, only 2 is correct, only both and 2 are correct, और neither 1 nor 2 is correct। तो देख लेते हैं कौन सही है। हम चलते हैं कि स्टेटमेंट 2 is correct, तो only 2 is correct। ठीक है, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तीनों के साथ करेगा ना, इसलिए 2 इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन भी दिया होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। A 1, B 4, C 3, D 2। बी में क्या दिया? A2, B1, C4, D3। सी में A4, B2, C3, D1 और डी में A1, B4, C2, D3। देखते हैं कौन सही आंसर है। अगर A को 4 से मिलाते हैं, विक्टर इमैनुअल II प्रोक्लेम्ड इज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ठीक है, बी का 2, यंग इटली मूवमेंट, ग्यूसेफी मैजिनी। सी को लेते हैं तो 3 में जा रहा है, वो भी 3 में जा रहा है। ग्यूसेपी गारिबल्दी कंसिक्योर्ड द किंगडम ऑफ साइसलीज, और डी का 1 में ले जाते हैं, काउंट कैवर चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। आंसर में यही सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, interpret the following pie diagram and choose the correct option for the following question. What is the significance of the 43% land under new zone areas? ये एरियाज है, ठीक है। 43% क्या शो कर रहा है? A, B, C, D। It supports urban development. B, it contributes majorly to food production. C, it is used for industrial growth. D, it is left uncultivated for future use. B is the correct answer. It contributes majorly to food production. Net zone area 43, यह है फूड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Read the data given below and answer the question. Why does Y have a higher rate of land degradation? A. High afforestation rates. B. Lack of industrial development. C. Increased deforestation for agriculture. And D. Use of rainwater harvesting. कौन सा सही होगा? तो चलिए, ये वाई जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन इन परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया, एक्स 12, फॉरेस्ट कवरिंग 22, वाई 25, फॉरेस्ट कवर इन परसेंट 35। तो इसको सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, राइट। कंक्लूजन में यही मैं बोलूँगा, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट डेट्स, लॉ एंड टर्म्स, प्रैक्टिस NCERT exercises and sample papers, pay attention to diagrams and their labeling, revise regularly to retain concepts better. और माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो भी बच्चे जा रहे हैं मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। नए साल में आपके मार्क्स, आपके परफॉर्मेंस, आपकी मेहनत जो है रिफ्लेक्ट करे आपके रिजल्ट पर, यही मेरी शुभकामना है। उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है और आप सब ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः फिर एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।